میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ اپنے خوابوں کی تعبیریں جان سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سب سے پہلے اپنے کال کی طرف اور جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کون ہے اور کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ جی سر، میرا نام محمد افضال ہے، میں مامو کانڈی سے بات کر رہا ہوں۔ سر، میں نے رات کو خواب دیکھا تقریباً 4:48 کا، جس میں مجھے ایک گم شدہ سونا ملا ہے۔ تو سر برائے مہربانی اس کی تعبیر کیا ہے؟ گم شدہ سونا ملا ہے، خواب گم شدہ سونا ملا ہے، خواب میں اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور ہمارے کالر ہیں، خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ گم شدہ خزانہ خواب میں ملا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجئے۔ ہاں جی بالکل، جب خواب میں اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے حق میں بہت زیادہ یہ بہتر ہوگا۔ تو خوابوں کا ایک میٹر ایسا ہے کہ بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن تعبیر کے اعتبار سے ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوا کرتی، اور بعض اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ اچھے معلوم نہیں ہوتے لیکن ان کی تعبیر بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خوابوں کا معاملہ ہے، اور اسی میں سے ایک مثال جو ہے وہ سونا خزانہ ملنے کی بھی ہے۔ جی سونا ہو، خزانہ ہو، اس کا ملنا یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی تو یہ کسی آزمائش کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ دعا مومن کا حق ہے، اور یہ دعا کر کے اللہ مجھ کو برے اثر سے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ ضلع پنجاب سے کال کی ہے، تو میری وائف صاحب آتے ہیں بہت، یعنی کہ نئے مکان کے، پانی کے، بھینسیں دیکھنی اور اس طرح کی خوابیں جو بہت زیادہ آتی ہیں، تو اس کی تعبیر کے بارے میں بس پوچھنا تھا۔ جی اسد بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بھینس کا انہوں نے فرمایا جو میں سمجھا، جی اور دوسرا پانی کا کہا۔ جی مکان، بھینس اور پانی، اچھا یہ فرمایا انہوں نے۔ اچھا اچھا، انہوں نے بیسیکلی کوئی خواب بیان نہیں کیا، بلکہ ایک روٹین کی بات کہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو دیکھیں، جب اسپیسیفک ہم کسی خواب کی تعبیر کی طرف جائیں گے تو پھر کسی خاص چیز کے بارے میں یعنی کہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح البتہ مکان جو ہے وہ اس کی تعبیریں جدا ہیں۔ صحیح اس حالت میں دیکھا، اپنے آپ کو مکان میں دیکھا، مکان کے اوپر دیکھا، مکان کے اندر دیکھا، تو ڈیٹیلز صحیح چاہیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح بھینس کا دیکھا تو بھی تعبیر کے اعتبار سے بہتر تو ہے، لیکن بھینس کو صورت میں دیکھا، کس طور پر دیکھا، تو یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ اسی طرح پانی اگر صاف ہے، میٹھا ہے، اور اگر بارش کا ہے تو بہت اچھا ہے، جی لیکن اگر صاف نہیں ہے، گدلا ہے، میلا ہے، جی تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ صحیح تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم دن بھر میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، تو صحیح بعض اوقات انہی چیزوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جی دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اور مجموعی طور پر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جی ان کے دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ساجد عوان بات کر رہا ہوں رحیم خان سے۔ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں درخت سے سیب
से उतार के सुर्ख कलर के सेब हैं और बड़े बड़े सेब हैं, तो वो मैंने उतार के एक बड़ी बहन को दिया और एक भाभी को दिया, और बाकी मैं लेके शॉपर में घर आया। तो ये बताइएगा। जी असद भाई। जी, सेब का देखना अल्लाह की नेमत है और बहुत ही प्यारा ये फल है। और जिस तरह इन्होंने बयान फरमाया कि रेड कलर का देखा, तो अच्छी हालत में फल का देखना सही। ये अल्लाह पाक की जानिब से नेमत मिलने की अलामत होती है। और अगर किसी को दिया है जी तो देने वाले से लेने वाले को नफा पहुंचने की, कोई अगर आपस में कोई मैटर था कि हल होने की ये अलामत है। तो सेब का देखना, खाना जबकि मीठा हो और सही दुरुस्त हालत पर हो, सही। ताबीर के एतबार से अल्लाह पाक की तरफ से कुछ नियामत, अच्छी खबर मिलने की, खुशखबरी मिलने की अलामत है। सुभान तो अल्लाह, प्यारा ख्वाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हमें नेक्स्ट कॉल कीजिए। ख्वाब आई है, मैं घुटने टेक के अपने वालिद साहब की कब्र पे दुआ कर रहा था, ठीक है, उनके कदमों को चूमा भी है। तो एक हफ्ता गुजरा है, उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ मदीने शरीफ में था। इसकी ताबीर ख्वाब की बता दें। जी हुजूर, ख्वाब में देखा है कि वो कब्र पर जो है। जी जी जी। जी इरशाद अब फरमाइए। ये इन्होंने बयान नहीं किया कि एक हफ्ते के बाद हकीकत में मदीने में थे या ख्वाब ही का मामला है। जी तो बहरहाल अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी देना ये तो एक अच्छा अमल है। जी और अगर वाकई किसी के वालिदैन दोनों या कोई एक इंतकाल कर गए हों जी तो इसाले सवाब के लिए, दुआ के लिए उनकी कब्र पर जाना और सही। उन्हें दुआ देना, इसाले सवाब करना, ये बहुत ही सादत मंदी की बात है। खास तौर पर वालिदैन की कब्र पर इसाले सवाब के लिए, फातिहा खाने के लिए जाना सही। बड़ी ही सादत की बात है। अलबत्ता कब्र को चूमने से उलमा ने मना फरमाया है। तो बेहतर ये है कि जब भी किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हों या वैसे ही कब्रिस्तान जाएं तो कब्र से कुछ फासले पर रहें सही और वहीं से दुआ करें। सही। अलबत्ता अगर कब्रिस्तान के अंदर है तो इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि राह चलने में, कब्र तक पहुंचने में किसी मुसलमान के कब्र पर पाँव ना पड़ता हो। तो ये आदाब है कुछ, इनका ख्याल रखें सही और जरूर हाजिरी दें वालिदैन की कब्र पर। इंशाअल्लाह उन्हें भी फायदा होगा और ख्वाब देखने वाले को भी बरकतें नसीब होंगी। तो एक अच्छा अमल इन्होंने देखा है कि सही। वालिद साहब की कब्र पर जो है वो हाजिर होते हैं। और हकीकत में भी अगर वालिद साहब दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं तो इन्हें चाहिए कि दुआ की कसरत करें। इंशाअल्लाह इसका सवाब और इनका फायदा जो है वो वालिद साहब को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जी सुनाइए, हमारे साथ मजीद नाजरीन में से क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मैंने रात ख्वाब में देखा मैं ट्रेन के पटड़ी के करीब खड़ा हूँ। किसी शख्स ने मुझे आवाज दिया, भाई पटड़ी से दूर हो जाओ, ट्रेन आ रहा है। मैं पटड़ी से दूर चला गया। ट्रेन मेरे पीछे से गुजर कर मेरे सामने आया। जब ट्रेन सामने गुजर रहा था तो मैंने उसका गाड़ा गिनती किया कि कितना गाड़े हैं इसके। जब ट्रेन गुजर गया तो आगे एक कपड़े का चादर जैसे दीवार लगा हुआ था, तो मैं वहां उस कपड़े वाले चादर की दीवार दरमियान से फाड़ कर मैं उसको क्रॉस करके बाहर निकला। और इसी ख्वाब देखते हुए मेरे मामू जान भी किसी साइकिल की सवारी पे, वो भी उस कपड़े से साइकिल चलाते हुए क्रॉस करके हम दोनों निकल गए। इस ख्वाब की ताबीयत मालूम करना चाहता हूँ। असद भाई ये इरशाद फरमाइए कि ट्रेन का ख्वाब में देखना कैसा है। एक हमारे यूज़र ये हमसे जानना चाह रहे थे, उन्होंने फिर कुछ अपना वाक़या बयान किया कि मैं भाग रहा हूँ वहाँ आगे आगे और मुझे किसी ने आवाज़ दी कि आप हट जाएं, ट्रेन आ रही है। तो इस तरह हुजूर हमारा सवाल ये है कि ट्रेन का ख्वाब में देखना कैसा है। देखिए बहुत सारी चीजें हमारे अतराफ में ऐसी होती हैं जो हम इस्तेमाल भी करते हैं या उससे हमारा ताल्लुक रहता है और वही चीजें हमें ख्वाब में भी नजर आती हैं। तो ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती। अब ट्रेन एक ऐसी कॉमन चीज है कि हमारे इलाकों की बात करें तो इसमें बकसरत सफर किया जाता है और वैसे नॉर्मल सी चीज है कि अगर ट्रेन आ रही हो तो सामने से हट जाना चाहिए, लोग भी कहते हैं जी। तो एक उमूमी हालात से मुतालिक ख्वाब है और ऐसे ख्वाबों की ताबीर बयान नहीं की जाती। सही जी। मजीद कॉल दीजिए और बताइए कि हमारे नाज़रीन हमसे क्या जानना चाह रहे हैं।
मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब, एक पिंडाल है उसमें मैं बैठा हुआ हूँ और वो उनके हाथ में दो चीजें हैं और उन्होंने मेरा नाम लेके कहा है कि ये दोनों चीजें इत्तेफाक की है। थोड़ी देर के बाद वो आगे चले गए, फिर मेरी तरफ मुड़े हैं तो मैंने उनसे मुसाफिया किया है और वो दोनों चीजें उन्होंने मेरे हाथ में रखी हैं। एक मुझे पता चला कि एक रियाल है, 1000 का रियाल है और एक कोई चीज बंद है, अंदर से बहुत ग्रीन है। लेकिन उसके एक महीने के बाद मैं उम्रे पे चला गया तो मुझे उस ख्वाब की ताबीर मिल गई कि 1000 का रियाल भी मैंने देख लिया और जो चीज बंद थी वो मेरे नबी पाक का रोजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी असद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? ख्वाब में अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी हुई है और मदीना तय्यबा की हाजिरी भी नसीब हुई है इन्हें। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार, हर आशिक रसूल को बार बार प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमाए। आमीन। बहुत ही अच्छा और मुबारक ये ख्वाब है जी। आपने खुद फरमाया कि उसकी ताबीर भी मैंने देख ली कि आप मदीना पाक सचमुच भी पहुंच गए। तो बहरहाल बार बार हाजिरी की दुआ करनी चाहिए और बुजुर्गों की ज़ियारत और उनका कुछ अता फरमाना ये अच्छी फाल, अच्छी अलामत होती है। सुभान अल्लाह। अब शुक्राने में चाहिए कि आप मदनी काफिले के मुसाफिर बने। सुभान अल्लाह। और दावत इस्लामी के मदनी कामों में अपने आप को मसरूफ करें। इंशाअल्लाह मजीद अमीर अहले सुन्नत की बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। जी मजीद कॉल दीजिए। मैंने ये कल ख्वाब देखा था कि मैं सोया हुआ होता हूँ तो एक चीता जो है वो मुझे मेरी हिफाजत कर रहा होता है। जिस तरह मेरी एकदम आँख खुलती है ना तो मेरी गर्दन के पीछे चूहा बैठा होता है, वो मुझे देख कर एकदम भाग जाता है। हुजूर ख्वाब में चीता का देखना कैसा है? चीता ये आराम फरमा रहे हैं और चीता इनकी हिफाजत कर रहा है। चीता एक दरिंदा है और इसका देखना एक ताकतवर संजू किस्म के साहिब मनसब शख्स की अलामत होती है। जी। अगर ये हमलावर हो, नुकसान पहुंचाए, काटे या किसी तरह से जख्मी करे जी। तो वो ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं होता। अलबत्ता उसका हिफाजत करना इंशाअल्लाह इनके हक में बेहतरी का सामान होगा। बिलखुसूस अगर इनका कोई मामला था, बाज़ औक़ात हम किसी काम में फंसे हुए होते हैं जिसमें किसी की हाजत होती है, मदद की जरूरत होती है, तो इंशाअल्लाह वो इनका काम होगा और अल्लाह पाक की रहमत से इनके उस काम में इनको आसानी नसीब होगी। तो नतीजतन अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का इन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। असद भाई एक सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे खुद ही डायरेक्ट सवाल अर्ज करता हूँ। कैसे ख्वाब, मतलब जो भी ख्वाब देखे जाते हैं और उनमें से कुछ ख्वाब बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। हमारे मुआशरे में एक ये बहुत कहा जाता है कि जो बुरे ख्वाब होते हैं अगर आप किसी को बताएंगे तो ये सच हो जाएंगे, और अगर कोई अच्छे ख्वाब हों तो इसको जो है वो बताते रहना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जी ये बात तो दुरुस्त है कि बुरा ख्वाब जो है वो किसी को बयान नहीं करना चाहिए, सिवाय उसके कि जिससे आपने ताबीर लेनी है और वो ताबीर बयान भी कर सकता है। तो ये हमें बताया गया है, तालीम दी गई है कि ख्वाब हर एक को बयान नहीं करना चाहिए। और ये भी दुरुस्त है कि अगर हम अपना ख्वाब किसी को बयान करेंगे और उसने जैसी ताबीर की तो वैसा ही हो जाएगा। अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, उसकी कुदरत है, उसकी मशीयत है कि ख्वाबों की ताबीर को इस तरह से अल्लाह पाक ने किया है कि जिस तरह की ताबीर की जाती है वैसा हो जाता है। तो दुरुस्त है ये बात कि हर एक को नहीं बयान करनी चाहिए। मदनी चैनल का जो यूट्यूब चैनल है, मदनी चैनल उर्दू लाइव, यहाँ पर भी हमें कमेंट्स के ज़रिए से ख्वाबों की ताबीरें पूछी जा रही हैं। हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि ख्वाब में सफ़ेद फूल का देखना कैसा है? सफ़ेद फूल ख्वाब में देखना कैसा है? सफ़ेद फूल कौन सा है ये बयान करना चाहिए। अगर तो गुलाब का है तो अच्छी अलामत है इंशाअल्लाह। अगर कोई शादीशुदा है और उसके यहाँ विलादत का सिलसिला है तो अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएगा। इसी तरह से गुलाब का देखना गुमशुदा शख्स के, गायब शख्स के आने की भी अलामत होती है। बाज़ औक़ात हमारे अजीज होते हैं, अक़रबा होते हैं, दूर रह रहे होते हैं, तो किसी गायब की जो दूर रहता है, बहुत लंबे अरसे से नहीं आया,
اس کے آنے کی یہ علامت ہوتی ہے، اور اگر کوئی اور پھول ہو تو وہ بیان کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ مزید حضور، یہ خواب میں ایک بڑا پتھر دیکھتا ہوں اور ایک گمنام جگہ پر ہوں۔ لیاقت خان بھائی ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، خواب میں بڑا پتھر دیکھا ہے اور ایک گمسم جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی جگہ ہے، انجان سی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک بڑا سا پتھر دیکھتا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے، نامعلوم اور ایسی جگہ پر دیکھنا اپنے آپ کو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں راستہ بھول چکا ہوں، ایسی نامعلوم جگہ پر کہ اپنے آپ کو دیکھے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا۔ سنت روح گردانی یعنی کہ سنت کی دوری، شریعت پر عمل نہ کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے اور جو بھی وہ کام کاج کرتا ہے، جو بھی اس کی مصروفیات ہیں، تو شرعاً اس کی جو وہ اسکیننگ کرے، تفتیش کروائے، معلومات کرے کہ کہیں کسی غلطی میں مبتلا تو نہیں۔ جی۔ اور رہی بات پتھر کی، تو ایک عمومی پتھر کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جی۔ ظاہر ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو پتھر ہوتے ہیں اطراف میں۔ جی۔ البتہ جو قیمتی قسم کے پتھر ہوتے ہیں جیسا کہ زمرد ہے، صحیح، عتیق ہے، صحیح، اسی طرح اور جو پتھروں کے نام ہوتے ہیں، تو پھر ان کی تعبیریں الگ الگ اور جدا ہوا کرتی ہیں۔ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں آسمان پر اللہ اور محمد لکھا دیکھا ہے، بڑا خوش ہوں اور اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ عمر فاروق بھائی ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھنا برکت کی علامت ہے، اور بعض اوقات ویسے بھی جاگتے ہوئے بھی آسمان پر اس طرح کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، لوگ انہیں محفوظ بھی کرتے ہیں، اور خواب میں بھی دیکھنا یہ مبارک ہوتا ہے، اور ان مبارک ناموں کا دیکھنا انشاءاللہ کسی برکت ملنے کی علامت ہے۔ گھر میں اگر کوئی تنگی پریشانی تھی تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگی، بیماری ہے تو انشاءاللہ اسے چھٹکارا ملے گا۔ جی۔ تو ان ناموں کا دیکھنا خواب میں مبارک اور اچھا ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ جی، ہمیں کال بھی دیجیے اور سنائیے کہ ہمارے کالر اسلامی بھائی ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی۔ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوں تو میرے ساتھ میرا بھتیجا بیٹھا ہے چھوٹا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو وہ بال کو پھینکتا ہے باہر کی طرف پھینکتا ہے۔ کمرے کے آگے بہت بڑا بڑا گھاس ہے، اور گھاس میں جب وہ گیند پھینکتا ہے تو گیند کو لینے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کدھر چلا گیا۔ میں اس کو بھاگتا اس کے پیچھے جاتا ہوں پکڑنے کے لیے نا اس کو، تو جب اس کو پکڑنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ نظر نہیں آتا۔ جو ہی میں گھاس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرا جسم بھی اس طرح سخت ہو جاتا ہے، ان کے نہ مجھ سے بولنے ہوتا ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، تو میں پیچھے کی طرف گر جاتا ہوں۔ تو میرے بچوں کی امی بھاگتی آ جاتی ہے، وہ مجھے بلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مجھ سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، نظر مجھے آ رہا ہوتا ہے لیکن میں بول نہیں پاتا۔ تو اس کے بارے میں مجھے یہ تعبیر بتا دیں۔ جی اسد بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کی ترکیب رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی بچوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو جو ظاہری اسباب ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور بچوں کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے اقدامات جو ضروری ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور صاحب خواب جس نے خواب دیکھا ہے، اگر واقع ان کے بھتیجے ہیں اور چھوٹے بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان کے ماں باپ اس حوالے سے ضرور کہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ اس طرح کے خواب کا مطلب نقصان پہنچنا ہی ہو۔ بعض اوقات انڈیکیشن ہوتا ہے، اللہ پاک کی جانب سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میٹر پر ہم مزید غور کریں جی، اور دعا کریں، کچھ صدقہ کر دے اس نیت سے کہ اللہ پاک خاص طور پر جس کے بارے میں دیکھا ہے اور عمومی طور پر اپنے تمام بچوں کے لیے حفاظت کا سامان ہو، تو یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، تو یہ ایک فطری عمل ہے، بہت ساروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں ان میں سے بھی کوئی کہیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ خواب میں کبھی آپ دوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ دوڑ نہیں پاتے، بظاہر کوئی چھوٹا سا
दीवार होती है, कोई छोटी सी नदी होती है, जो कि आम तौर पर हम बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ख्वाब में आप उसको क्रॉस करना चाह रहे हैं, जंप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा, आप दौड़ना चाह रहे हैं, दौड़ा नहीं जा रहा। तो ये एक चूंकि ख्वाब में हमारे एहसासात, हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती मुकम्मल तौर पर, तो इस तरह की कैफियत पैदा होती रहती है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज है, इससे किसी तरह की परेशानी का बाइस नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी और घर वालों की हिफाजत के लिए दुआ भी करना चाहिए और उसके राह में इस नीयत से खर्च भी करना चाहिए। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। मदनी चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूछ रहे हैं रजब शाह के ख्वाब भूल जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? जी असद भाई, ख्वाब भूल जाते हैं रजब शाह साहिब। और तो रजब भाई खुद ही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। असल में ख्वाबों का भूलना ये कोई तशवीश की बात नहीं होती और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लोग उम्मन ये समझते हैं कि ख्वाब का भूल जाना के पता नहीं क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं भूल जाता हूँ। तो प्यारे भाई ऐसा नहीं होता। हर एक शख्स की अपनी अलग कैफियत होती है। कई लोग हैं जिन्हें ख्वाब ही नहीं आते जी, कई वो हैं कि जो रोजाना ख्वाब देखते हैं और कई के ख्वाब देखते हैं जी। इसी तरह याद रहने या न रहने के एतबार से भी लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाजों को तो सालों तक अपने ख्वाब याद रहते हैं और बिल्कुल वाज़ेह होते हैं और बिल्कुल क्लियर उनके ज़हन के अंदर होते हैं जी। और बाज़ औक़ात ख्वाब याद नहीं रहते। तो इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है, ना ही हमें कोई परेशानी में मुब्तला होना चाहिए कि न जाने पता नहीं क्या वजह है कि ख्वाब मुझे याद नहीं रहता। जी। तो कोई बात नहीं, अगर याद रह जाए तो भी हर्ज नहीं है, भूल जाते हैं तो भी हर्ज नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें ना कोई अच्छाई है और ना ही बुराई है। तो इसके अंदर कोई फजीलत या परेशानी की कोई बात नहीं है। सही। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक और कमेंट आपका शामिल करते हैं सिलसिला। असद भाई बहुत इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर बुरे ख्वाब आते हों तो आपको शुगर का मर्ज लाहिक हो चुका है। ये हमारे साथ एक यूज़र हैं, उनका ये पूछना है कि क्या बुरे ख्वाब जिसको आए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको शुगर का मर्ज लाहिक हो गया है, इसकी क्या हकीकत है? इरशाद फरमा दीजिए। चले जी, अब ये कमेंट है, अलबत्ता कहीं पर ऐसा सुना या पढ़ा नहीं है और बज़ाहिर ये दुरुस्त भी मालूम नहीं होता कि ख्वाब की वजह से जो है वो या अमराज की मलूमात की जाती हो जी, तो दुरुस्त मालूम नहीं होता। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक किसी ने कोई बात कही है तो हमें रेफरेंस जो है वो दे दिया जाए, हम गौर कर लेंगे। लेकिन इस तरह से अमराज और शुगर के बारे में जी, ऐसा नहीं है और ना ही किसी को परेशान होना चाहिए कि मुझे इस तरह के ख्वाब आते हैं, पता चले कि शुगर हो गया है। तो ये एक जाहिर के साथ इसका ताल्लुक है। अगर आप टेस्ट करवाते हैं या कोई इस तरह का मैटर है सही, तो वो करवाना चाहिए। सही। तो अब इसकी इस तरह के ख्वाब की ताबीर की अगर बात करें, वो तो हर देखने वाले के हाथ में है। चेक करवा ले जाके कि मुझे वाकई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन ख्वाबों की ताबीर से इस तरह अमराज का कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है इन्होंने भी कहीं सोशल मीडिया में कोई इस तरह की बात पढ़ ली हो, तो ऐसा बज़ाहिर नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत खूबसूरत आपने जवाब अता फरमाया है। मज़ीद हमें बताइए कि कॉलर हमारे साथ इस वक्त कौन है और हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद हसन शेखुपुरा से। सवाल ये है कि ख्वाब में मैंने देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया का मैं शिकार करता हूँ और जब उससे गोश्त हासिल करता हूँ तो गोश्त बहुत ज्यादा तादाद में होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसकी ताबीर बता दीजिए। जी असद भाई, हसन भाई हैं, शेखपुरा से हैं। ख्वाब में चिड़िया का शिकार करते हैं और ढेरों सा गोश्त हासिल करते हैं, इसकी क्या ताबीर है? ये अच्छा ख्वाब है। इंशाल्लाह कोई इनको अच्छी खबर मिलेगी। हलाल परिंदे का गोश्त खाना ये अच्छा होता है और अगर कोई इनकी तमन्ना थी
या कोई ख्वाहिश थी और वो जायज थी तो इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जायज हाजात को पूरा फरमाए। अलबत्ता ताबीर के एतबार से इंशाअल्लाह किसी खुशखबरी मिलने की अल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। जनाब ख्वाब में देखा है कि वो तकरीबन टाइम था नमाज से पहले, एक बच्चा तंदूर में जल रहा है, ऐसी ताबीर कोई बताइए। बच्चे का तंदूर में जलता हुआ देखना कैसा है? जी असद भाई। देखिए, अगर नामालूम बच्चा है, पता ही नहीं कि कौन है, तो एक ऐसे उमूमी ख्वाब इसकी कोई ताबीर नहीं होगी। और अगर किसी स्पेसिफिक जिसको आप जानते हैं उस बारे में देखा है तो फिर उसकी हिफाजत का सामान करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी घर वालों की कोताही की वजह से भी बच्चों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन उनके वालिदैन को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और हिफाजत का सामान भी करना चाहिए। बल्कि अपने बच्चों के लिए मैं मशवरा दूंगा कि मदनी मुन्नों के लिए, मदनी मुन्नियों के लिए तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से हिफाजत का तावीज़ जरूर लेना चाहिए, डालना चाहिए, ताकि हिफाजत का सामान रहे। और साथ में जो ज़ाहिरी असबाब होते हैं बच्चों की, अब मिसाल अगर किसी घर में वाकई तंदूर भी है और बच्चे भी हैं छोटे और वो इस तरह का ख्वाब देखते हैं, तो अल्लाह पाक की जानिब से ये इंडिकेशन भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे की हिफाजत करें। और अगर ऐसा मैटर नहीं है, जैसे कि शहरों के घर होते हैं उसमें तंदूर का तस्वुर भी नहीं होता, तब भी चाहिए कि बच्चों को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं, हमारे घर में कोई बेहतियाती का सामान है इस तरह का, तो उसमें जो है वो एहतियात से काम लेना चाहिए। इंशाअल्लाह हिफाजत का सामान होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक खसूसी एहतिमाम के साथ किसी एक ख्वाब पर या किसी एक चीज़ पर मदनी गुलदस्ता तैयार किया जाता है। आज का मदनी गुलदस्ता क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर मेरे पीछे दाएं और बाएं बहुत सारी बतखें हैं। फ़ारसी में इसको बत बोलते हैं और अरबी के अंदर भी अलबत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में इसको बतख कहा जाता है। बड़ा ही प्यारा ये परिंदा है और इसका गोश्त खाना भी हलाल है और इसका अंडा भी इस्तेमाल कोई करना चाहे तो कर सकता है। अगरचे कि हमारे इलाकों में हमारी जो तहजीब है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसका अंडा ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन शरई एतबार से अगर कोई इसका गोश्त खाना चाहे या इसका अंडा खाना चाहे तो वो जायज़ है। ये वो परिंदा है कि जो हवा में उड़ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं उड़ता, थोड़ी थोड़ी इसकी उड़ान हुआ करती है। घरों के अंदर भी लोग इसको पालते हैं, खुश्की और पानी दोनों में रहता है। ज़्यादा खुश्की में और कुछ देर पानी के अंदर भी इस परिंदे को अगर डाला जाए तो निहायत ही खुशी का इजहार होता है। बतख को ख्वाब में देखना कैसा, आज के इस मदनी गुलदस्ते के अंदर हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक परिंदा है जो कि हम उमूमन देखते रहते हैं और ख्वाब के अंदर भी इसका नज़र आना मुमकिन है। तो बतख को अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है तो ताबीर के एतबार से ये माल और नेमत मिलने की दलील होती है। तो अच्छा ख्वाब है, ख्वाब देखने वाले को अल्लाह पाक नेमत अता फरमाएगा, कोई उसके माल में वुसअत अता फरमाएगा, रिस्क में अल्लाह पाक उसको वुसअत अता फरमाएगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स ये देखता है कि बहुत सारी बतखें हैं और उसके घर में जमा हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता बतख का घर में होना या उस इलाके में होना और बोलना, जैसा कि अभी आप बैकग्राउंड पर आवाज़ें सुन रहे हैं, ज़रा गौर करें कि बहुत सारी बतखें हैं और इनकी ये आवाज़ें हैं। तो ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखता है कि बहुत सारी बतखें जमा हैं और वो बोल रही हैं तो ये ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं होता। उस इलाके में, उस घर पर अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश नाजिल हो सकती है, कोई मुसीबत का सामना अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को करना पड़ सकता है। तो चाहिए कि इस तरह का ख्वाब देखने वाला शख्स अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे और मुसीबत से, आजमाइश से छुटकारे और हिफाजत के लिए कुछ सदका करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिफाजत का सामान होगा। जी हाँ, मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि बतख जो है वो बोलती है, आवाज़ है इसकी। तो अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज देखे और ये देखे कि गोया के बतख उसके साथ बातें करती है तो इसकी ताबीर क्या होगी?
مالدار عورت کے سبب سفر اختیار کرے گا اور عزت اور نفع اٹھائے گا۔ تو اگر وہ خواب کے اندر بطخ کو باتیں کرتا ہوا اپنے آپ کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو ہے اور بہتر ہے، نفع پانے اور عزت اللہ پاک کی جانب سے ملنے کی یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جی ہاں، تو بات چل رہی ہے بطخ کی، تو بطخ کئی کلرز کی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر وائٹ کلر میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سفید کلر کی، وائٹ کلر کی جو ہے وہ بطخیں ہیں، لیکن بلیک کلر کی بھی ہوتی ہیں اور بھی اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو سفید رنگ کی بطخ عورت کی دلیل ہے اور بلیک کلر کی، کالے رنگ کی بطخ جو ہے وہ کنیز پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسی عورت کہ جو اس کی ملکیت میں ہو، کنیز ہو، خادمہ ہو، اس کی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، جب بطخ کی ہم بات کرتے ہیں اور ایسا پرندہ کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو میں بھی پاسبل کہ آپ نے خواب کے اندر بھی اس طرح کا منظر دیکھا ہو کہ کسی نے بطخ کو ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بطخ کو مارنا یعنی کہ اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا، یہ تعبیر کے اعتبار سے کچھ حصہ اس کا بہتر ہے لیکن کچھ حصہ اس کا بہتر نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ بطخ کو ذبح کرتا ہے اور اس کا گوشت کھاتا ہے تو یہ عورت کی وراثت سے مال پانے کی علامت ہے، لیکن ایک اور علامت بھی ہے کہ وہ مال تو پائے گا عورت کی وراثت سے، لیکن اس کو ضائع کرے گا، ایسے کام میں خرچ کرے گا کہ جس سے وہ نفع نہیں اٹھائے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ تعبیر اچھی اور بہتر نہیں ہے۔ تو یہ تھی بطخ سے متعلق کچھ خوابوں کی تعبیریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مزید مدنی گلدستے آپ کو ہم نے دکھانے ہیں، اگلے سلسلوں کے اندر آپ مزید گلدستے جو ہے وہ دیکھ پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر ہمارے حق میں اچھی ظاہر فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ بطخ کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے، اور یاد رہے کہ آپ جب کبھی بھی خواب میں کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ جو کوئی برا خواب ہے تو ایک ٹینشن سی ہوتی ہے، پریشانی سی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے اس برے خواب کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی